سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان بزرگ کو تو آپ جانتے ہوں گے، عمرہ گئے اپنی محنتوں سے، اور اس کی ساری تفصیلات میں نے ابھی 2 دن قبل جو پرائم ٹائم آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں تفصیلات سنائی تھی۔ اب یہ جیسے ہی اپنے وطن واپس لوٹے ہیں، یہ لوگوں کے لیے جو ہے اب ایک خاص شخصیت بن چکے ہیں، بزرگ بن چکے ہیں۔ لوگ دعائیں لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آ رہے ہیں اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو نے اس وقت جس طرح سے جو ہے ہنگامہ مچایا وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح بہت زیادہ وائرل ہو جانے اور بزرگوں کی اس طرح سے یہ کرنے سے لوگوں کی سوچ کبھی کبھی جو ہے وہ غلط سمت چلی جاتی ہے، اور جس طرح اس وقت ان کے گھر کے آس پاس میں لوگوں کا جمگھٹا جمع ہو رہا ہے، سروں کو جھکایا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے تبصرے دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں، اس سے جو ہے کچھ ڈر سا لگنے لگا ہے۔ جبکہ اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے لوگ صرف یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعائیں لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ دعائیں لینے کے لیے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ اور ہی نظارہ دیکھنے کی وجہ سے اب یہ ویڈیو کہیں تعریفوں کے ساتھ تو کہیں تنقیدوں کے ساتھ جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی شباہت صحابہ اکرام کے دور سے کرتے ہوئے ان کی سادگی کو لے کر، ان کے لباس کو لے کر کے جو ہے پوری دنیا میں دھوم مچا ہوا تھا۔ اس کی ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ اس کو تھوڑا سا ویڈیو دیکھ لیں۔ ناظرین گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں دی کیرلا اسٹوری کی۔ آپ لوگ تو بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سال کا عرصہ یا اس سے پہلے کا بھی مختلف ذرائع اور وسائل جو ہوا کرتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو داڑھی، ٹوپی، پگڑی اور ایک شبیہ کو جس طرح سے بدنام کرنے میں سب سے بڑا اگر کوئی رول ادا کیا گیا ہے تو وہ فلموں کے ذریعے سے ادا کیا گیا، جس کی چھاپ بیٹھ گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے پوری دنیا کے اکثر ممالک اسلاموفوبیا کا شکار ہو گئے، اور یہ سلسلہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور اب تو کوئی بھی فلم مسلمانوں کو بدنام کیے بغیر یا ان کی شبیہ کو خراب کیے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہوتی، وہ چاہے جس دھرم سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اب ایک اور فلم آ رہی تھی کیرلا اسٹوری کے نام سے، اور اس میں ادا شرما نامی ایک ہیروئن ہے جو اس وقت گفتگو کر رہی ہے میڈیا میں۔ اس فلم کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 32,000 سے زیادہ لڑکیوں کو جو مسنگ ہے، جن کو اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد ان کو جہاد کے لیے جو ہے تیار کیا جاتا ہے۔ 32,000 لڑکیاں ایک ریاست سے غائب ہو جاتی ہیں اور حکومت کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انفارمیشن بیورو کیا کر رہا ہے؟ 32,000 لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ملک کے باہر لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی خفیہ ایجنسیوں کی اور حکومتوں کی ناکامی ہے اگر سچ ہے، جبکہ یہ پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، خواتین کو بدنام کرنے کے لیے، برقع پوش خواتین کو بدنام کرنے کے لیے، یا خاص دھرم کو بدنام کرنے کے لیے، خاص ریاست کو بدنام کرنے کے لیے۔ جس طرح سے جو اس فلم کو بنائی گئی ہے ویسے بھی تنازع کا شکار تھا۔ یہ ادا شرما کا ایک تازہ انٹرویو سامنے آیا تو جو اس طرح بیان کر رہی ہے کہ کسی ایک لڑکی سے اس نے ملی تھی، اب وہ لڑکی کون ہے، اس کی شناخت تو بتائے، کہیں اس کو پیسہ دے کر کے زبردستی بلوانے کی کوشش تو نہیں کی گئی، اس لیے کہ کیرلا تو ویسے بھی جو ہے نشانے پر ہے اور مسلمان تو کئی سالوں سے نشانے پر ہیں۔ ایک اور فلم جو ہے اس میں ایڈ کر دی جا رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے یہ ویسے بھی پیسوں کی خاطر اداکار کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، وہ تو ہم لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ ان کا نہ دین دھرم ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے،
पैसे मिल गए, जिस तरह से की स्टोरी बनाना शुरू कर दिया। और आजकल तो द कश्मीर फाइल्स के बाद जिस तरह से तारीख को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, ज़बरदस्ती मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है 2024 तक के लिए, ताकि बुनियादी मसाइल लोगों के जहनों से हट जाए। इलेक्शंस मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हैं, ऐसे में इस फिल्म को रिलीज़ करने की कोशिशें हो रही हैं। लोगों का अब इंटरव्यूज़ होंगे, उस सिलसिले में बड़ी बड़ी गुफ्तगू होंगी, डिबेट्स होंगे। अब इलेक्शन के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में जो ज़मीनी सतह की गुफ्तगू हो रही है कि बीजेपी 40% की वजह से जो है बदनाम हो रही है, और मुख्तलिफ तरक्याती काम ना करने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, जराइम की वजह से, नकली इनकाउंटर्स की वजह से, अब उस तमाम चीज़ों को एक फ़िल्म के ज़रिए से जो है पूरी तरह से मस्क करने की कोशिश की जाएगी। ये सब प्रोपेगेंडा है। देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम भी करो, अपनी बुनियादी मसाइल जो लोग पूछते हैं उनका रुख बदलो, और फिर जो है एक बार फिर मुसलमानों की कश्ती पर सवार होकर के इलेक्शंस जीतो। कहाँ से मामला कहाँ जा कर के जुड़ जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली खबर में मैं एक वीडियो आपको इस वक्त दिखाना चाह रहा हूँ। आज सुबह के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह इंडिया का मीडिया भारत के एक खबरस्तान की खबर की तस्वीर शेयर करके पाकिस्तान का कहते हुए कहा कि वहाँ पर रेपिस्टों से बचाने के लिए खबरों को तालाबंद गेट लगाए जा रहे हैं। अब उसकी हकीकत क्या है, ख़ुद मौलाना यहाँ पर बता रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक जो है हैदराबाद के एक कब्रिस्तान का मज़ार है, मज़ार क्या कहें, खबर है, तो एक गेट के सामने, मस्जिद के गेट के सामने, यानी कि जो दरवाज़ा एंट्री होते वहाँ पे बनाया गया था। और बहुत सारी चीज़ें खुद बता रहे हैं। पाकिस्तान का ये कहते हुए बग़ैर किसी तहक़ीक़ के इंडिया के मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस तरह से फेक न्यूज़ चलाता है, प्रोपेगेंडा करता है भारत का मीडिया। देखिए इस वीडियो को मैंने वहाँ पूरी सच्चाई आपको सामने बता दी थी। अब यहाँ देखिए कि इसकी हकीकत क्या है। ये खबर कितनी पुरानी है? तकरीबन जो है 1.5-2 साल पुरानी होगी जी। और ये खबर जो बनाई गई ये बगैर कमेटी के जिम्मेदारों के बगैर इजाजत बनाई जी। और रास्ता भी इससे तंग हो गया। अच्छा। इस पे 8 दिन तक मस्जिद में किरकिरी होती रही कि ये दरवाजा के सामने नहीं बनानी थी। और फिर उसके अलावा इस पर जाली डाल दी। जाली क्यों डाले? कई लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी कब्रों में नए मैयतों को दफना के चले जा रहे हैं बगैर पूछे, क्योंकि जिसकी मैयत पहले से दफन है उसको एतराज है। उन्होंने आते हैं फातिहा पढ़ने को, कुल कलाम पढ़ने के लिए, तो वो आके मायूस होते हैं कब्र अपने खानदान के लिए, दूसरे की। तो उस पे जो है ये क्या करे, कोई ऐसा नहीं करना बल्कि जाली डाल दी। अच्छा, ये जिसका इंतकाल हुआ ये कितनी एज कितनी थी आपको पता है? नहीं, ये तो नहीं मालूम। और इसकी नमाज जनाजा भी सालार मुल्क मस्जिद में अदा नहीं की गई, बाहर से आई है। अब ये नहीं मालूम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। ये एरिया का नाम क्या है? इसका नाम मादन्नापेट दाराबजंग कॉलोनी। दाराबजंग कॉलोनी, मादन्नापेट दाराबजंग कॉलोनी। मगर ये सोशल मीडिया पे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत है। ये इस वजह से जाली लगाई गई कि एक तो रास्ता है जी, एक कब्र दिखती रहना जी, इसको जो है मिट्टी की वजह से बराबर नहीं होना, जाली की वजह। रास्ता है आपको दिख रहा है, गेट के सामने है, इस वजह से जाली को लगाया गया है। और कोई वो नहीं है। अच्छा, नहीं वो नई खबर है। ये कोई खबर का गलत 50 गलत है, वो मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान की है, वो है पाकिस्तान की, वो बता रहे थे। पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, हैदराबाद है जी, और दक्कन हैदराबाद है, मादन्नापेट दाराबजंग कॉलोनी जी हाँ, हैदराबाद ओल्ड सिटी। बस यही मालूम करने का था मुसावी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर माता मंदिर में तैनात 3 मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म जारी करने के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। इस मामले पर मध्य प्रदेश की वज़ीर सकाफ़त वोशा ठाकर ने वजाहत पेश की। उसने कहा कि मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही मुलाजिम के तौर पर मुकर्रर किया जाना चाहिए और जो हमारे धर्म को नहीं जानते उन्हें कहीं और मुकर्रर कर देना चाहिए।
नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए कि महकमा मजहबी ट्रस्ट और औकाफ ने सतना ज़िले में मशहूर मेहर माता मंदिर कमेटी से मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म 17 जनवरी 2023 को जारी किया था। इसमें मंदिर में काम कर रहे मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने और महर में गोश्त और शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद किए जाने का मुतालबा किया गया था। वजीर ने महकमे को इसके हवाले से हिदायत जारी करते हुए एक मकतूब भी इरसाल किया। इसकी बुनियाद पर महकमा ने सतना कलेक्टर को हिदायत जारी करते हुए मुस्लिम मुलाजिमीन को उनके ओहदे से हटाने की बात कही थी। इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो महकमे ने दोबारा याद दहानी की। 17 जनवरी की मकतूब में कहा गया था कि महर में गोश्त और शराब की फरोख्त बंद कराने और शारदा मंदिर कमेटी से मुस्लिम मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म दिया है। मकतूब पर 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया था। शारदा मंदिर इंतजामी कमेटी में मौजूदा 3 मुलाजिमीन आबिद, अय्यूब और यूसुफ खान तैनात हैं। माँ शारदा देवी मंदिर इंतजामी कमेटी के सुपरिटेंडेंट नंद किशोर पटेल ने बताया कि ऐसे मुलाजिमीन को बाहरी काम सौंपा गया है। ये कमेटी की हिदायत पर काम करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन किस तरह से कहाँ क्या कुछ जो भारत में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली थी, वो अचानक सामने आने के बाद जो है इस वक्त अलग अलग तरह के जो है सवालात भी उठ रहे हैं और जो सेकुलर हिंदू हैं वो भी इस जो है फैसले पर सवाल कर रहे हैं, इतराज़ कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इधर यूपी के सीनियर एसपी लीडर और साबिक वजीर जनाब आज़म खान साहब ने उनके कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया है। आज़म यूपी में बल्दियाती इंतखाबात के लिए रामपुर में पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुहिम चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतीक और अशरफ की तरह उसे भी कत्ल किया जा सकता है। पुलिस हिरासत में अतीक अहमद उनके भाई के कत्ल के बाद रियासत में खौफ का माहौल है। अदालत ने इस मामले में योगी हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इंतखाबी मुहिम के लिए निकले साबिक वजीर और साबिक एमपी आज़म खान ने कहा कि आप मुझसे और मेरे बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारी कनपट्टी पे गोली मार दे? बस इतना ही रह गया है। निज़ाम हिंद बचाओ, कानून बचाओ, कुछ देने की ज़रूरत नहीं। बस हिम्मत होनी चाहिए। जहां आपको रोका जाए वहीं बैठे और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज़म खान जो बीमारी से लड़ रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के लिए तवील अरसे बाद स्टेज पर आए थे और उन्होंने वहां पर इस बात का खदशा जाहिर किया। वैसे भी नाज़रीन गिरामी, इफ़ज़ाल अंसारी को 4 साल की सजाए कैद और फिर लोकसभा रुकनीत ख़तरे में पड़ जाने और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडरान को और मुख्तार अंसारी को मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने, 5 लाख का जुर्माना आयद किए जाने, जबकि इससे बड़े बड़े लीडरान पर अलग अलग तरह के इल्ज़ामात हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीडरान को निशाना बनाए जाने को लेकर के वैसे भी यूपी हुकूमत या वहाँ की इंतज़ामिया बदनाम है। ऐसी सूरत हाल में आज़म खान की जानिब से आया हुआ बयान बड़ी अहमियत का हामिल है और इसको सुर्खियों में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जुल्म थमता नहीं है भारत में। किस कदर इंतहाई तकलीफदा हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से खबरें आती हैं, ये जो है आप बेहतर जानते हैं और हम प्राइम टाइम में लगातार आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। 29 अप्रैल की ये बात है नाज़रीन गिरामी, शायद आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी, लेकिन अक्सर इस खबर को सुर्खियाँ नहीं मिली। लातूर महाराष्ट्र में शर्मनाक हिंदुत्व दहशतगर्दी सामने आई। एक मुसलमान को जानवर के सामने सर झुकाने पर मजबूर करने की वारदात पेश आई है। जान से मार देना, जय श्री राम के नारे लगवाना, ज़बरदस्ती पेशाब पिलाना और अब जो है बैल और गाय के सामने ज़बरदस्ती सर झुकाने पर मजबूर करना, ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। मोहम्मद आसिफ नामी शख्स को गौकशी का इल्ज़ाम लगाते हुए न सिर्फ उसको जो है सर झुकाने पर मजबूर किया गया, बल्कि उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल भी किया गया। वीडियो है, शायद इसको हम आपके सामने रख नहीं सकते, यूट्यूब के अपने कवानीन के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वारदात के मंजर ने दिलो दिमाग को हिला करके रख दिया है कि किसी मुसलमान से किसी जानवर की हिंदुआना ताज़ीम कराने से बड़ा जुल्म सितम और मुसल्लत शिर्क क्या हो सकता है। हिंदुत्व दहशतगर्दी की वारदात और गम गुस्से की सख्ती करने वाली और मुसलमानों की ईमानी शान पर रास्त हमला करने वाली है। 23 अप्रैल को दरअसल आसिफ कुरैशी ने 18 मवेशियों को ख़रीदा था और उन्हें ओसा मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहा था, तो गौरक्षकों ने उसका पीछा किया, उससे ज़दोकोब किया
اور آصف قریشی پر مویشیوں کو ذبح کرنے کا الزام لگایا۔ پولیس موقع واردات پر پہنچے اور آصف کے مویشیوں سے بھرے ٹرک کو بھی ضبط کر لیا، اور اس کی ایمان کے ساتھ جو یہ ہندوتوا دہشت گردوں نے، گورکشک نامی ان درندوں نے جو کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ حالات ہیں بھارت میں۔ ناظرین گرامی، بہرکیف مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،